So, hey my friends, welcome. So, in this video, we will be talking about this answer booklet, and this is the answer booklet of Aditya Srivastav. And what will we get from this answer booklet? Let me tell you something first. Like the question around this water has been asked and have been asked, like in the previous year question papers. If you just analyze, you will get the idea of water, like water stage, the water scarcity, what are the problems related water scarcity, and how can we manage it. In 2021, it has been asked about the India's water crisis, right? So those kind of questions are being asked, so we can just get some ideas from this answer booklet, how we can just do that, like how we can write efficiently, flawlessly about that. Okay, so like there was a question in 2020, like suggest measure to improve water storage. So I got the paper here, so I can easily tell you all the things. So you can also like see the PYQs to get the idea of water related questions. Okay, so we will start video now. So several initiatives have been taken by the government towards addressing India's water needs. Okay, so अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स, देखो पहले तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके, मतलब हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट जो इंडिया की वाटर नीड्स है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है. बट इश्यूज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर क्वालिटी स्टिल वारंट प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन. अब वारंट के माने जस्टिफाई या फिर कोई चीज़ को नेसेसरी कर लेना, वो वाली बात होनी यहाँ पे. लेकिन जो वाटर की अवेलेबिलिटी है और वाटर की जो क्वालिटी है अभी भी क्या है, वो प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन चाहता है. मतलब अभी भी ये जस्टिफाई कर सकता है कि वाटर की क्वालिटी अगर देखें, हम वाटर की अवेलेबिलिटी को देखें, तो हमें अभी भी कोई और प्रायोरिटाइज मतलब और अच्छे कदम उठाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत है. ये क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर के अराउंड है, और बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने वाटर के बारे में पूछ चुके हैं. तो आप इस क्वेश्चन से मतलब इसमें जो भी आंसर में जो पॉइंट्स है हम उसे आसानी से हमारे नोट्स में ऐड कर सकते हैं, और जब हमें क्वेश्चन लिखने का मौका मिले, आंसर लिखने का मौका मिले, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं. तो देखते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन को, आंसर को डील किया गया है. ओके, सो देखिए सब पे पहले कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स टेल्स दैट बाय 2030 इंडियाज वाटर डिमांड वुड बी ट्वाइस द सप्लाई. नीति आयोग का डेटा है. So this is how we have to use the data. We do not have to write this is said by Niti Aayog, this is the data from Niti Aayog. We can just simply write what is the body and what it has to, like talk about something. So the Niti Aayog has talked about this, so we just have to write it down here. So composite water management index क्या कहता है कि 2030 तक by 2030 India's water demand, जो इंडिया की जो वाटर डिमांड है, पानी की जो मांग है, would be twice, मतलब 2 गुना हो जाएगी सप्लाई से, ये बोलने की बात है. और यहाँ पे सिंपली क्या किया गया है, नीति आयोग के बारे में बता दिया गया, मतलब नीति आयोग लिख दिया गया है कि ये डिनोट कर रहा है कि ये नीति आयोग के जरिए बोला गया, तो हम भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. अब देखिए, वी हैव टू मेमोराइज सम पॉइंट्स रिलेटेड लाइक दी टू दिस what you say the initiatives or schemes, whatever you call it, for the prelims, like what is Atal Bhujal Yojana, how it works, what are the functions, what are the bodies and all related to these. But for this mains exam we do not have to, we just have to remember only one point, like this is the scheme and this is for this and this is by this ministry and all. We can remember this for the mains answer writing. Okay, I'm talking about the mains, and if you're talking about the prelims, we have to know the bodies, the functions, and some kind of important point, okay, that we can focus on, something like that. So several initiatives taken, like Atal Bhujal Yojana, जो ground water के लिए, Jal Jeevan Mission, Har Jal. You can just read this, and we have to add this whenever UPSC is asking about water related things, and the initiatives has been taken from the government, by the government. So we can just like use these points here, right? So we can take these 3 or 4 initiatives or the steps or the scheme, whatever you call it, and you can write these in your notes as well right now. Okay, so now this is the point here, where yet the issues of water availability and quality remains. Okay, so ये जो हमने अभी क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाटर और अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को देखें, तो अभी भी ये प्रायोरिटाइज इंटरवेंशन होना ज़रूरी है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये उसको जस्टिफाई करने वाला है. ओनली 42% हाउस होल्ड्स हैव 24/7 वाटर अवेलेबिलिटी. तो देखिए ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आप वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए. तो पोल्यूशन भी है, बेबी सिंड्रोम जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. बेबी सिंड्रोम क्या होता है, जो बच्चों की जो स्किन होती है उससे रिलेटेड होता है, जिसके ऊपर
कुछ ब्लू या ब्राउनिश मतलब कुछ धब्बे नज़र आते एक तरह से, उनकी स्किन नज़र आती है लो ऑक्सीजन की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे, हम ब्लू बेबी क्या कहेंगे, हम सिंड्रोम कहेंगे, राइट। फिर उसके बाद देखिए रिवर लाइक यमुना, उसमें भी जो पॉल्यूशन पाया जा रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर ग्राउंड वाटर 17% एक्वाफायर ओके क्रिटिकल, मीन्स ये CGW का डेटा है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में देखिए कि एक्वाफायर के माने क्या है, एक ऐसी मतलब एक ऐसा पत्थर होता है जो मतलब या सेडिमेंट कहिए जिसमें एक कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, ग्राउंड वाटर को होल्ड करने की, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और जो हम ये जो CGWB की बात कर रही है, क्या स्टैंड करता है किसके लिए, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के लिए। तो ये उसका डेटा है कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें पूरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें लिखना पड़ता है ना कि इट इज़ सेड बाय, दिस इज़ द डेटा फ्रॉम दिस बॉडी, वी डू नॉट हैव टू राइट, वी कैन जस्ट लाइक राइट इनटू ब्रैकेट एंड ऑल, ओके। सो आगे देख लेते हैं। ओके उसके बाद देखिए ये जो रीज़न है कि किस तरीके से वाटर में ख़राबी आ रही है, मतलब जो वाटर क्वालिटी वो ख़राब हो रही है, वी कैन यूज़ दिस पॉइंट्स देयर। पावर सब्सिडी एज इन पंजाब, ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर, ओके। सो पावर सब्सिडी की, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, पावर की सब्सिडी की वजह से ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉयट किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए देखिए उसके बाद है सैलिनाइजेशन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अब देखिए सैलिनाइजेशन को अगर हम समझ गए तो ये भी हम समझ जाएंगे। देखिए उसके इसमें क्या होता है कि जो अगर सैलिनिटी बढ़ जाती है कोई क्रॉप में या पैस्चर्स में या ट्रीज़ में, तो वो जो नाइट्रोजन का अपटेक होता है, जो नाइट्रोजन लिया जाता है वो उसके साथ इंटरफेयर करेगा, और जैसे कुछ आयंस होते हैं जिसे हम जैसे पर्टिकुलरली क्या कहेंगे हम, क्लोराइड जिसे कहेंगे हम, वो टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स के लिए। अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये प्लांट्स के लिए पॉइजनस होगा, मतलब जहर ये कर देगा। और उसके बाद है रे इन पंजाब एंड हरियाणा, और ये जो रे है ये भी क्या है, एक तरह की ये ड्रायर भंगर प्लेन जो होते हैं, एक तरह का प्लेन है समझ लीजिए, पंजाब में एक तरह की ज़मीन टाइप लैंड फॉर्म समझ लीजिए पंजाब और हरियाणा में। सो और क्या है यहाँ पे, ओवर यूज़ ऑफ सब्सिडाइज यूरिया, ओके। सो नाइट्रोजन रन ऑफ एंड यूट्रोफिकेशन। अब देखिए जो ओवर यूज है सब्सिडाइज यूरिया का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन रन ऑफ हो रहा है। और देखिए यूट्रोफिकेशन प्रोसेस क्या है, जो अलगाई ब्लूम्स होती है वो सारे फिश होते हैं वो मर जाते हैं इसकी वजह से, यूट्रोफिकेशन की वजह से। तो इन्वायरमेंट को हर्ट होता है, डैमेज होता है, उसी को हम यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कहेंगे। बहुत मतलब लंबा चौड़ा है कॉन्सेप्ट, ये आप पढ़ सकते हैं ये, और हम भी पढ़ लेंगे। फिर देखिए वे अहेड टू एड्रेस दीज इश्यूज। अब इसके लिए क्या रास्ता है वो देखना है हमें। बेटर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ मानसून, लाइक लर्न फ्रॉम गुजरात सोनी योजना। तो हमें क्या करना है कि बेटर स्टोरेज और मैनेजमेंट ऑफ मानसून, जैसे हम रेन हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मानसून का, और ये एक स्कीम का नाम दिया गया है वन वाटर अप्रोच। अब ये भी अप्रोच को हम कभी लिख सकते हैं कि इसमें क्या है कि जितने भी वाटर जहाँ से भी आ रहे, जैसे स्ट्रीम से, टैप से, नलों से, स्टॉर्म से या रेन वाटर, सभी को हम एक तरह से मैनेज करेंगे, ओके। मतलब एक तरह की एक हॉलिस्टिक बॉडी होगी समझ लीजिए उस तरीके से। और सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, यूज़ फैटोरिड वाटर ट्रीटमेंट, ओके। सो पहले तो देखिए सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। अब सर्कुलर इकोनॉमी अगर पता होगा अगर आपको, तो इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है वो बहुत दिनों तक इस्तेमाल की जाती है, उससे मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने से। जैसे कोई अगर से जैसे हम न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले ले, तो हम उसको और डबल रीप्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्प वगैरह, रिम वगैरह बनाकर, मतलब उसको और रिसाइकल कर इस तरीके से हम बोलेंगे, उससे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहेंगे। तो ये वाटर का इस्तेमाल हो रहा है कि हम वाटर को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं फैटोरिड किसके लिए, वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद देख लेते हैं सो जो पीपल कैंपेन, लर्न फ्रॉम द निसर्ग कैंपेन ऑफ महाराष्ट्र। जो निसर्ग कैंपेन है महाराष्ट्र की, हम उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। सो दिस वुड हेल्प अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ वाटर एंड अपहोल्ड SDG 6, ओके। बहुत सारे टॉपर जितने भी फर्स्ट ईयर के टॉपर, फर्स्ट रैंक वाले टॉपर है, उन्होंने SDG का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। सो इसे भी हम याद कर सकते हैं। और आपको पुरानी सारे आंसर बुकलेट में आपको एक ना एक जगह 1 2 3 सारे मिल जाए, तो उसी को आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एड SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, 6 ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके। सैनिटेशन यानी साफ सफाई वगैरह, ओके, वाटर। सो हमें ये कि क्या हो अपहोल्ड करेगा, क्या है बरकरार रखेगा कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ वाटर एंड अपहोल्ड जो वाटर की वैल्यू है वो वाली चीज़। और SDG का 6 का जो गोल है, जो जिसमें क्लीन वाटर और स्वच्छता की बात हो रही है, सैनिटाइजेशन की, सैनिटेशन की, ओके, क्लीनलीनेस की, तो उसकी बात हो रही है, वो उसे अपहोल्ड रखेगा।
So this was the video, and we have learned something from this video. I might say this. And if you want to take any points from these notes, you can. And if UPSC tends to ask these kinds of questions like what are the challenges, what are the measures or initiatives related to the water management, and what are the water stress area, water crisis, how we can tackle this situation, something like that is being asked a lot in the UPSC examination. So we can just like take points from this answer booklet. I would just say from this answer particularly, I would just say. And if you have enjoyed, if you have learned something new, and if you really believe that okay, this was a very great video that it helped me, so what you have to do, you just have to hit the like button and tell me in the comment section, did you take out any point or any paragraph or anything from this answer booklet or not, and did it help you or not? You have to tell me as well. And thanks for watching this video.